हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोच। मेरा नाम अंकित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंजस लॉ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। फ्रेंड्स, in this lecture you will understand Lenge's law, which is a very beautiful law, and you know many problems of magnetism can be solved with this law, like direction problem, like mostly we face and inquire so many doubts. So for clearing those doubts, I prepared this slide to make your concept clear. So what is the concept? First of all, we will understand. Concept is that it states that direction of induced current is such that it opposes the cause that has produced it. Means what? According to Lenge's law, for example, this is the magnetic field space, and in this space some loop is entering. This is our loop is entering in this space. So what happened? According to Lenge's law, the direction of induced current in the loop means in this loop, ये मेरा क्या है? ये loop है. Clear? So in this loop the direction of current is such that it opposes the cause that has produced it. Means what is the cause? Cause क्या है? क्या cause था जिसने इसको मतलब क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो करंट है वो किस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, उस कॉज का अपोज करेगा. So direction of induced current is such that it opposes a cause that has produced it. Means when this loop is entering in this magnetic field space, then flux phi is equal to B into A. As we know, B into A, magnetic field into area. So जब ये loop इसके अंदर enter करेगा magnetic field space में, then what happen? Area linked with this loop will increase. अभी इतना एरिया जा रहा है, देख रहे हैं आप, इतना एरिया चला गया. आफ्टर सम टाइम इट विल, पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, इस लूप के अंदर चला जाएगा. Then flux will increase, phi will increase. So increase in flux, rate of change of flux as per Faraday's law of electromagnetic induction produce EMF, and direction of induced EMF produce EMF. Okay, this EMF basically means current. Because of this EMF, some current will induce in this loop, and the direction is such that it opposes the cause that has produced it. Means increase in flux is the cause. So current, in which direction current will flow? Just tell me. It will try to decrease the flux. Increase flux का अपोज करेगा. कब, कैसे? इस फ्लक्स को डिक्रीज करके. तो डिक्रीज कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा के, काउंटर क्लॉकवाइज. समझ आ गया? तो हमेशा याद रखना, कभी लूप है, किसी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, ये बाई हार्ट याद रखना, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल. तो यहाँ आपका क्या है? इंक्रीज इन फ्लक्स. जब लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, देन व्हाट हैपन? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट विल रिड्यूस. समझ आ गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिख रहा था पहले बी, वो थोड़ा कम हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा? फ्लक्स कम हो जाएगा. एंड फ्लक्स कम होना मतलब, फ्लक्स कम होने का मतलब क्या है? इसमें यही लिखा था, इट अपोज अ कॉज, बढ़े हुए फ्लक्स का घटा देगा. समझ आ गया? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन दिस लूप इज मूविंग डाउनवर्ड. जब ये लूप बाहर आएगा, when this loop is moving with velocity v, then flux linked with this loop will decrease. Phi decrease करेगा because the area linked with this loop will decrease. Because of that flux will decrease. तो ये loop क्या करेगा? अपना flux को कम नहीं होने देगा. So decrease in flux is responsible for the induced current in this loop. So it will try to increase flux. How it will increase? देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराएगा, तो क्या होगा? इट विल सपोर्ट द फ्लक्स. पहले इसके बाहर आने से क्या होगा? फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसको कम को अपोज करेगा. कम को अपोज कैसे करेगा? इसको बढ़ाएगा. बढ़ाने का मतलब क्या? अपने अंदर एक क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? और मैग्नेटिक फील्ड, जो पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, जो पहले वाली थी, उसको सपोर्ट करेगा. उसकी वजह से क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए. ये बी बढ़ जाएगा, इस बी को बढ़ा देगा ये.
उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा. इट मींस क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो, क्लॉकवाइज. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये जो लूप है, ये लूप इस वाले स्पेस में मूव कर रहा है, इन दिस स्पेस. बिकॉज ऑफ दैट इसका एरिया लूप के साथ, दिस एरिया लिंक्ड विद दिस लूप विल इंक्रीज. बिकॉज ऑफ दैट फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए. जब ये एरिया इनसाइड आएगा इसके, तो एरिया लिंक्ड विद दिस लूप विल इंक्रीज. बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स विल इंक्रीज. सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट. मींस ये बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा. कैसे? देखिए ये अपने अंदर एरिया तो अपना श्रिंक और वो नहीं कर सकता, लेकिन अपने अंदर करंट की डायरेक्शन को इस तरह इंड्यूस कर लेगा जिससे फ्लक्स, बढ़ता हुआ फ्लक्स कम हो जाएगा. कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा के. काउंटर क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा के क्या करेगा, ये जो बी है इस बी को रिड्यूस कर देगा. समझा गया? जो आपको बी यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा, ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने से क्या होगा, बी की डायरेक्शन अपने अंदर ये आउटवर्ड कर लेगा कुछ कुछ. तो ये जो नेट आउटवर्ड और नेट इनवर्ड, तो बी टोटल जो होगा आपका, बी नेट विल रिड्यूस, बी आउट माइनस बी इन. तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिडक्शन आ जाएगा, कमी आ जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स जो बढ़ता हुआ दिख रहा था वो कम हो जाएगा. सो इट विल फ्लो द करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. समझा गया व्हाट इज द डायरेक्शन? ये क्वेश्चन पूछा था आपसे रेक्टेंगुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी. सभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है. अब देखिए ये जो ऊपर वाला जो आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, दिस बार मैग्नेट इज अप्रोचिंग दिस लूप. ये जो लूप है आपका सर्कुलर लूप दिख रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है. अप्रोच करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज. बिकॉज बार मैग्नेट जितना पास आता जाएगा लूप के, जो बी है आपका, ये जो बी है, एरिया तो कांस्टेंट है इस लूप का, ठीक है. बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, लूप क्या इसको बढ़ने देगा, बी बढ़ेगा. उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स चेंज होगा, एज पर फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देयर इज अ सम इंड्यूस ईएमएफ. बिकॉज ऑफ दैट सम करंट विल इंड्यूस इन दिस लूप. उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टॉप से देखना, यहां से देख रहे हो आप, ये आपकी आंखें हैं और यू आर सीइंग फ्रॉम दिस. इसके ऊपर से देखोगे क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट. ये अपने अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा लेगा. कैसा? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज फ्लो कराने से क्या होगा, यहाँ एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा. तो ये जो फ्लक्स पहले बढ़ रहा था उसको अपोज कर देगा. सिंपल बात है, अपने कॉज को अपोज करो. कॉज क्या था उसको अपोज करते जाओ. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, लूप, अ सर्कुलर वायर लूप फॉल्स टुवर्ड्स अ स्टैंडिंग मैग्नेट. जो मैग्नेट की तरफ आ रहा है. जस्ट अ मिनट. तो ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये जो लूप है, दिस लूप इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टैंडिंग मैग्नेट. जब स्टैंडिंग मैग्नेट के अप्रोच करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स इस लूप से बढ़ेगा, फाई का वैल्यू बढ़ेगा. अभी बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा. अब फ्लक्स जब इस लूप से लिंक करेगा, चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा. अपोज कैसे करेगा, ऊपर कैसा करंट फ्लो कराएगा, क्लॉकवाइज. जब ऊपर साउथ पोल क्रिएट होगा, ऐसे करके देखो, ऊपर से देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो अपने अंदर ऊपर से देखना ऐसे ही क्लॉकवाइज चल रहा है. नीचे हो जाएगा नॉर्थ पोल. याद रखना, रिंग के अगर ऊपर से देखोगे, एज व्यू फ्रॉम द टॉप, टॉप से देखोगे तो देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब साउथ पोल. बैक से देखोगे पीछे से, तो पीछे इसके नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा होगा. तो एज यू व्यू फ्रॉम द टॉप, क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप, करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप. टॉप से याद रखना, ये इसका टॉप है और इसका ही बॉटम है, ये बॉटम है, ये टॉप है लूप का. तो आप यहां से देख रहे हैं, यू आर व्यूइंग फ्रॉम हियर, तो यहां से देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो इन द लूप. क्लॉकवाइज फ्लो करने से क्या, यहाँ नॉर्थ साउथ, तो बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज कर देगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई विल डिक्रीज. तो डायरेक्शन समझ आ गया. अब देखिए अ सर्कुलर वायर लूप, सेम क्वेश्चन है, ठीक है. आई एम सॉरी, काफी रिपीट हो गया, इसको देखते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन है, एज अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट अप्रोच दिस सस्पेंडेड एल्यूमिनियम रिंग, अ करंट इज इंड्यूस्ड एंड द रिंग इज रिपेल्ड. अब देखिए जब ये बार मैग्नेट इस रिंग को अप्रोच करेगा, तो इस एज पर द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट
दिस बार मैग्नेट रिपेल। अब रिपेल क्यों हुआ, आप खुद सोचिए, जब ये बार मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप विल इंक्रीज, सो फाई विल इंक्रीज। जब फाई बढ़ेगा, क्या ये इसको बढ़ने देगा, फाई बढ़ा मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज सम इंड्यूस ईएमएफ, देयर इज सम इंड्यूस करंट विल इन दिस लूप। अब वो इंड्यूस लूप के अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन सच अ वे दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। मींस ये बढ़ता हुआ जो फ्लक्स आपको दिख रहा है इसका अपोज करेगा। मींस आप यहाँ नॉर्थ अगर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ ये नॉर्थ क्रिएट कर लेगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए अगर ऐसे बता रहा हूं, अगर यहाँ नॉर्थ क्रिएट कर लेगा और इधर साउथ, अगर इस साइड नॉर्थ क्रिएट करना है, एज यू व्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से देख रहे हो, अगर यहाँ नॉर्थ क्रिएट करना है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हियर। अब ये रिपेल क्यों करा, समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है हमसे इसमें कि मान लीजिए कि जब ये लूप, जब बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस रिंग, इस रिंग से अगर अवे जाता है बार मैग्नेट, देन अट्रैक्शन विल हैपन। अट्रैक्शन विल हैपन मींस जब ये दूर जाएगा तो इससे जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स आपको दिख रहा था, ये कम होता जाएगा। फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप विल डिक्रीज when bar magnet moving away from the loop, means phi is equal to b into a, phi will decrease, when phi will decrease, क्या ये loop इसको decrease होने देगा, it oppose the cause that produce it, means कम का ज्यादा कर देगा, ज्यादा को कम। अब फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको बढ़ा देगा, ये ना यहाँ नॉर्थ है तो अपने यहाँ पर साउथ क्रिएट कर लेगा, तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये फ्लक्स को बढ़ा देगा अपने अंदर। मतलब कैसे कैसे साउथ क्रिएट होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देगा, ऐसे शोइंग हियर, अपने अंदर कैसा करंट फ्लो करा देगा, क्लॉकवाइज। याद रखना ये क्लॉकवाइज यहाँ से दिख रहा है आपको, ये क्लॉकवाइज जो दिख रहा है करंट आपको यहाँ से दिख रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से देख लो आप, सॉरी ऐसे होगा क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज ऐसे दिखेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। और जो व्यूअर यहाँ पर होगा उसके लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ साउथ होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से रिंग से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिंग के एक साइड कैसा क्रिएट होता है पोल, नॉर्थ पोल, और एक साइड क्या होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप कि काफी डाउट्स थे बच्चों के और वो आई थिंक क्लियर हो गए। जैसे अगर मैं यहाँ से देखिए एक व्यूअर, आप एक बंदा ये खड़ा है और एक बंदा ये खड़ा है, ठीक है। अगर मैंने करंट ऐसे फ्लो कराया, ठीक है, एज पर दिस ऑब्जर्वर दिस करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है, इसके अकॉर्डिंग क्या एंटी क्लॉकवाइज, मींस यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यहाँ साउथ पोल क्रिएट होगा, समझा गया। तो रिंग में याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल क्रिएट होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, ऐसे जाती है, आपको पता ही वो सब चीजें। मेरा मेन कंसेप्ट ये था लेंज लॉ में उसको बताना आपको कि लेंज लॉ बेसिकली क्या है। लेंज लॉ सिर्फ और सिर्फ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। वो क्या होती है, इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, मींस जो भी कॉज जिसने इसको प्रोड्यूस करा है वो उसका अपोज करेगा। अगर बढ़ते हुए फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस करा है तो ये इसको घटा देगा। अगर कम होते हुए फ्लक्स ने इसको क्रिएट किया है तो उसको बढ़ा देगा। मतलब कम को ज्यादा, ज्यादा को कम, इसका काम सिर्फ इतना है। So once again thank you so much. If you have any doubt you can anytime approach me, and we have started our offline batch and you can anytime contact us, class 12th and class 10th. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.